चीज मंगवा रहे हैं वो मिसिंग हो, किसी और कोरियर के जरिए आप मंगवा रहे हैं या किसी और डिलीवरी आइटम के तौर पे आप मंगवा रहे हैं और वो चीज आपको वो ना पहुंचे या जिससे आप ना, तो उस पे आप क्लेम लॉन्च करते कि आपने पेमेंट ऑनलाइन कर दी है लेकिन यू डिड नॉट रिसीव द आर्टिकल दैट वाज एक्चुअली प्रॉमिस्ड। फॉर एग्जांपल दराज.com और ई मार्केटिंग जो चलती है आजकल, उसमें एंड आपको होता है कि आपने कोई चीज मंगवाई है लेकिन उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट आपको रिसीव हो रहा था। एट दैट in that scenario you must launch a claim. But despite utmost care and precaution in business transactions, mistakes do occur because of human frailty, wrong interpretation of message or misunderstanding of intentions. और आपको कुछ छोटी से छोटी चीज भी है वो गलत रिसीव हो सकती है। कस्टमर केयर भी हुआ करते हैं, लेकिन अगर आपकी मनी के इक्विवेलेंट चीज आपको रिसीव नहीं हो रही है, you have every right as a customer or as a buyer to launch a claim as such. एक स्मॉल पिज्जा भी आपने को रिक्वेस्ट किया है, अगर आपने फजीता ऑफर किया रिक्वेस्ट किया है और आपको अगर बारबेक्यू रिसीव हो रहा है, तो यू कैन अगेन launch a kind of a complaint and at times you can launch a claim as well because you did not receive the money in the article or the item that you had requested. A claim or complaint letter is written to bring the mistake or damage to the notice of the supplier or provider and to ask for rectification and compensation. An adjustment letter is a response to a claim letter. और उसके एडजस्टमेंट लेटर जो उसके अगेंस्ट जो जवाब आता है उसको एडजस्टमेंट लेटर कहता है कि थैंक यू वेरी मच एंड वी फील वेरी सॉरी फॉर व्हाट हैपेंड टू यू as a responsible company we are willing to compensate you by adjusting your amount in this way. तो उसके जवाब में आपको एडजस्टमेंट लेटर आता है। एक अच्छी सीजन कंपनी इस तरह करती है, लेकिन अगर आप मोहल्ले की दुकान पे ऐसा करें तो उसमें उमूमन ये लिखा होता है कि खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा, फॉल्टी सामान की का जिम्मेदार कस्टमर होगा, एक दफा खरीदी हुई चीज वापस नहीं होगी। लेकिन ये एक ऑर्थोडॉक्स मेथड है। मॉडर्न बिजनेस में कंपनीज इन ऑर्डर टू अपहोल्ड देयर रेपुटेशन एंड बिजनेस डू कंसिडर their buyers and customers the most. वो उनके लिए बॉस का दर्जा रखते हैं because from them they gain their revenue. In writing both these types of letters, utmost courtesy is required. Just a moment. Okay, so in writing both these types of letters, utmost tact and courtesy is required. Only a few can accept their mistakes with grace and be generous with offering proper adjustment. बहुत कम लोग होते हैं जो gracefully criticism को बर्दाश्त करें। For example, personal experience say I bought an imported honey bottle from Dilalson's once, and it crystallized very soon, maybe during the summers. Sugar बन गई उसकी, और imported honey था, and it was made in UK or prepared or gathered in UK किसी famous company से। तो मैंने उस बोतल के नीचे जो ईमेल था उस पे मैंने ईमेल कर दी, and I received a very rough reply. Rough in the sense कि कोई compensation नहीं, no admission of the fact that this was a fake honey or not real or original honey, and they said it is very normal for honey to crystallize. और उन्होंने अपनी कंपनी को पूरी तरह प्रोटेक्ट किया इस तरह बात करके। तो then I decided not to buy any article or any product made by that company, particularly honey and jam and etc. or jellies or whatever. So not every company or not every firm compensates for the claims that are actually launched, or even they do not entertain harsh criticism against those firms. But responsible and sensible and active players in the market often take very good care of their customers' complaints and claims. Here, let's come back to the word. However, in the world of business, both types of letters are often written and they constitute an important part of professional correspondence. What matters most in handling such correspondence is the right attitude, proper tone, and attention to the details of the claim and the adjustment offered. आपको अपना जो क्लेम लॉन्च करना है वो सिंपल आपके टेस्ट पे मबनी नहीं होना चाहिए। यू कांट से कि भाई ये आर्टिकल मुझे पसंद नहीं आया तो आप मुझे क्लेम वापस करें। नो,
आप लेडीज गारमेंट्स खरीदते हैं खाड़ी से या कहीं से भी, आप ये नहीं कह सकते कि ये मैंने खरीद तो लिया लेकिन घर आने के बाद मुझे पसंद नहीं आया, यू शुड एडजस्ट माय मनी against this article. You can't say. आपका taste है, that cannot be a yardstick to reject an item or stuff. Only if the article or only if the item is less than the money you spend, or if it is lacking in quality, it's like only then you are entitled to, or if it is or if it is not in good shape or not made well, or if it is fake, only then you can launch a complaint or it. And you have to be very polite and tactful. Your politeness matters. अगर आप polite हुए बगैर कहें कि आपने मेरे साथ धोखा किया है, मेरे पैसे वापस करें, तो कंपनी अपने आप को सेफगार्ड जरूर करेगी, वो कहेगी हमने धोखा नहीं किया. This is how we make articles, and you are the only customer who has come up with a complaint, so we cannot help you. आपको बहुत politely और tactfully चलना पड़ता है ऐसे सूरत में. However, efficient an organization may be, mistakes are likely to be made owing to human frailty and misunderstanding. इंसान गलती का पुतला है, उससे गलती हो सकती है और मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है. आपने ऑर्डर कुछ किया, उधर से डिलीवर करने वाले डेस्क से वो चीज नहीं भेजी गई. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ वेरी फेमस household hardware shop in Europe named IKEA. IKEA भी उसको बोलते हैं IKEA. It is run by Sweden. This kept stores all over the world, particularly in Western world. तो वो बहुत बड़े बिजनेस को चलाते हैं. लकड़ी के आर्टिकल, पूरे किचन का सामान, पूरे घर का इंटीरियर और एक्सटीरियर का सामान, तो दे प्रिपेयर. तो मुमकिन है कि you are ordering something at IKEA, you are ordering a bed or a double bed, and they deliver you a single bed due to some mistake or frailty or due to miscommunication. And if you receive a wrong article, you can launch a complaint or a claim and say, I had requested this thing, but you have delivered me a wrong article. Please compensate me. And then you will be compensated. Important services are sometimes unsatisfactorily rendered. Goods are consigned to wrong destinations, sometimes too late, sometimes less than the required quantity. Occasionally, they reach their destination in damaged condition because of faulty packaging or improper handling in transit. तो ये तमाम चीजें हो सकती हैं. आपने कोई चीज ऑर्डर की है, फॉर एग्जाम्पल आप घर बना रहे हैं और आपने मास्टर टाइल्स जो है गुजरांवाला से रिक्वेस्ट की कि मास्टर टाइल्स वालों को आपने कहा है कि आपकी टाइल्स बहुत अच्छी होती हैं, तो मुझे इतनी टाइल्स जो है घर के लिए भेज दें जो कि मैंने अपने वॉशरूम्स में लगानी है, ये पे भी इन द एंटायर इंटीरियर यू वांट टू ले देम और फिक्स देम. तो अगर आपको आपका डिजायर्ड कलर ना मिले जो आपने रिक्वेस्ट किया, फॉर एग्जांपल अगर आपने इंटरनेट से देख के सारा कुछ कर दिया और आप वहां पे गए नहीं, और अगर आप गए भी हैं तो आपको अगर डैमेज्ड आर्टिकल्स मिलते हैं, फॉर एग्जांपल उसमें से 150 जो है टूटी हुई मिली है आपको, तो यू कैन से कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि पैकेजिंग परफेक्ट हो एंड देयर शुड बी नो ट्रांजिट लॉसेस एज सच, कि जो आप उसको ला रहे हैं उस तरह उसमें कोई लॉसेस नहीं होने चाहिए, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी थी. तो देन यू कैन लॉन्च अ कंप्लेंट. तो ये तमाम प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. लेटर्स रिटन टू ब्रिंग दीज मिस्टेक्स टू द नोटिस ऑफ दोज़ मस्ट own the responsibility for them are called claim or complaint letters, and those written to take action on them are known as adjustment letters. आपने कंप्लेंट लॉन्च कर दी यानी ईमेल कर दी फॉर एग्जांपल, या लेटर लिख दिया, अगली क्लास वाला अभी पासवर्ड मांगने लग पड़ा है. सो much in hurry. Anyway, so letters written to bring these mistakes to the notice of those who must own the responsibility for them are called claim or complaint letters, and those written to take action on them are known as adjustment letter. आपने कंप्लेंट दर्ज की, उधर से जो जवाब आया वो एडजस्टमेंट लेटर होगा उसके जवाब में कि भी हम आपके लिए ये एडजस्टमेंट करने वाले हैं. हर फर्म इसके लिए काम के लिए तैयार होती है. I went to Metro, कैश एंड कैरी. मेट्रो का जो स्टोर है टोकन न्याज पे, मैंने कॉफी के 6 छोटे डब्बे खरीदे कि भाई वीक में मैं पीता रहूं एक कोल्ड कॉफी. जब बिल बनाया उन्होंने
तो मुझे उन्होंने 24 डब्बों का बिल बना के दे दिया। क्योंकि मैंने बिल घर आके देखा, मैंने कहा मैंने 6 छोटे डब्बे खरीदे हैं, इन्होंने पूरे कैनिस्टर यानी पूरा वो जो डब्बा होता है 24 का, उसका बिल बना के दे दिया। तो ऑब्वियसली इतनी कॉफी में मैंने नहाना थोड़ी था, तो मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा जी ये प्रॉब्लम है, और मैंने ऑफेंड होके या बेटर टोन में नहीं किया कि भी एक ही कीता तुसी, मैं कॉफी बेचनी थी या मैंने कॉफी का इतनी का अचार डालना था। नो, being cognizant of the fact that mistakes occur, I remain very candid and clear, and और मैंने उन्हें कहा कि आपसे गलती हुई है तो ये हो गया। तो they immediately entertained my request and said that whenever I come for grocery next time, I should bring my bill and also one photo of the article that I had with me. तो मैं 6 कप जो लिए थे डब्बे उनकी मैं फोटो ले गया। I went to their desk and launched a claim request, and immediately during my visit they reimbursed the extra amount that I paid in my last visit. So this is how good firms actually help and entertain their valued customers. और इसी को कहते हैं कि आप अपना ट्रस्ट जो है वो रिटेन करते हैं अपने कस्टमर्स के साथ। Making claims when you have to pay because of somebody else's mistake, your immediate and natural reaction will be anger. जो मेरा हुआ, जिस तरह मैंने कॉफी की एग्जांपल दी कि एंगर कि एक ही भी 6 की बजाय 24 कॉफियों के पैसे कटे हुए ने, ये तो नहीं चलेगा। If you draft a letter in this mood, it may contain sarcasm, occasions, accusations and threats. अगर आप इस मूड में, इस गुस्से के आलम में अगर आप एक लेटर ड्राफ्ट करके या ईमेल ड्राफ्ट करके उनको लिखेंगे तो उसमें यकीनी तौर पे तंज भी हो सकता है, उसमें यकीनी तौर पे गुस्सा भी हो सकता है और उसमें बदतमीजी भी हो सकती है। You should not do it. A second thought will reveal to you that these explosive reactions do not help. और दूसरा ख्याल आपके ध्यान में आएगा कि इस तरह के रिएक्शन हेल्प नहीं करते हैं। आपकी ईमेल पकड़ के वो कुछ हो सकता है जवाब भी ना दे, वो कहेंगे इतना बदतमीज कस्टमर, इसके साथ ये होना चाहिए था, हम नहीं इसकी हेल्प करेंगे। You must realize that all of us are liable to make mistakes, and a tolerant attitude towards the realities of life achieves more than hasty and ill-conceived reactions. और एक टॉलरेंट रवादारी में हम अपनी रिएक्शन, जिसमें आप स्वीट और हम्बल और पोलाइट होकर बात करें, उसके आपको ज्यादा फवायद होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी रोड के ऊपर गाड़ी बच गई है, आपने किसी में गाड़ी मार दी या आपकी गाड़ी में किसी ने मोटरसाइकिल मार दी, कुछ कर आप गाड़ी में से निकल के दूसरे का गिरबान पकड़ेंगे तो वो बिल्कुल आपकी इज्जत नहीं करेगा। हो सकता है आपके मुंह पे पंच मार दे फौरन कि भाई हो गया नुकसान, रोड पे ही एक्सीडेंट होते हैं, तो वो आपको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करेगा। दूसरा रिएक्शन क्या है कि यू कम आउट ऑफ योर कार एंड से ओह आई एम सॉरी, आई ट्राइड माय बेस्ट टू अवॉइड इट, so if you want me to compensate for the loss, I am willing for it. और एन मुमकिन है आपके अखलाक की वजह से या आपके अच्छे बात करने के अंदाज से दूसरा शख्स आपको फॉरगिव कर दे, वो कहे कि भाई गलती मेरी भी थी, गलती आपकी भी थी, रोड थी, तो गॉड हेल्प यू, गॉड हेल्प मी, हमारी जिंदगियां बच गई, लेट्स गो अहेड। बहुत कम होता है ऐसे रोड रेज, यकीनी तौर पे लोगों में होता है, लोग एक दूसरे से फौरन क्लेम मांगते हैं या 15 पे कॉल कर देते हैं। लेकिन बेहतर तरीका या बेहतरीन तरीका ये कि one must remain in one's poise, must not lose temper and go to the crux of the things through wisdom, through sense of the things. चीजों को समझ सुलझाने की नीयत से आगे जाना चाहिए rather than सुलझाना, और गुस्सा जो है चीजों को उलझाता है। You must realize that all of us are liable to make mistakes, and a tolerant attitude towards the realities of life achieves more than hasty and ill-conceived reaction. Hasty और temperament पे मबनी reaction जो है आपको जिंदगी में कुछ नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल, आप खुदा न खास्ता कोई शख्स अगर गुस्से में आके दूसरे शख्स को इंजर कर दे तो हो सकता है अगले 2 साल वो जेल में टाइम गुजारे। मर्डर करते तो हो सकता है अगले 10-12 साल या इवन सारी जिंदगी जेल में गुजारते। तो ये हिस्ट्री रिएक्शन और इल कंसीव्ड रिएक्शन था। अगर उसको सेंसिबली सॉल्व किया जाए, टेम्परामेंट कंट्रोल करके, तो दैट कैन बी that can lead to fruitful solutions. Surely your purpose in writing a claim letter is not to accuse someone, but to sort out the problem and to secure the services or products that you need and that are due to you. और basically एक claim letter का मकसद होता है कि चीजों को एक मस्बत एंड की तरफ लेके जाया जाए। To achieve this objective, you should be courteous,
फोर्थराइट, कर्टियस यानी पोलाइट हो, फोर्थराइट हो यानी आगे बढ़ के आप काम करें, प्रिसाइज यानी मुख्तसर बात करें लेकिन क्लियर करें। Let your temper cool down before you write a claim letter, और अपने टेम्परमेंट को कंट्रोल करें। आप अपनी एप्लीकेशन में या किसी लेटर में एग्रेसिव नहीं हो सकते, बदजुबान नहीं हो सकते। अगर आप होंगे तो वो आपके लेटर को पकड़ के गार्बेज में फेंक के आएंगे कि भाई ये क्या टोन है, भाई ये क्या तरीका है। आप अपने निजी मामलात में या अपने निजी कंपनी में यूनिवर्सिटी इंतजामिया को जितनी मर्जी बुरे अल्फाज से याद करते हो या जिक्र करते हो, लेकिन इफ यू आर सपोज्ड टू राइट एन एप्लीकेशन यू कैनॉट बी एग्रेसिव और सार्डोनिक और इवन फनी in your correspondence. जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो आप मोस्ट रिस्पेक्टेबल प्रिंसिपल्स have, और आई बेग टू से ये तमाम चीजें लिखते हैं। तो कॉरेस्पॉन्डेंस मांगती है ये चीज है कि यू हैव टू बी फर्स्ट पोलाइट एंड नॉट aggressive and short tempered. You'll then be in a better position. Just a moment, एक और WhatsApp. So you'll then be in a better position to make it business-like and restrained. So you'll then be in a better position to make it a business-like and restrained. अगर आप टेम्पर पे रह के बात करेंगे तो ये बिजनेस लेटर होगा प्रॉपर। अगर आप उसमें गालियां बकेंगे, सख्ती का सख्त अल्फाज अपनाएंगे तो वो बिजनेस लेटर नहीं होगा बल्कि एक रेंज पे मबनी डॉक्यूमेंट होगा। A letter so written has greater chances of eliciting the desired response from the reader. Number one, your claim letter should generally contain the following 4 elements. Claim letter के अंदर ये 4 elements होने चाहिए। 1, a clear explanation of what has gone wrong. Give full information for quick identification of the defective product or faulty service. In the case of a product, details such as the exact date of purchase and arrival, the amount paid, order number, color, size, model number, make, etc. are helpful in making a recheck by the supplier easier. फॉर एग्जाम्पल अक्सर चीजें क्वालिटी चेक तो होती हैं लेकिन एट द सेम टाइम दे हैव वारंटी एज वेल। तो वारंटी इसी चीज के लिए दी जाती है क्योंकि एन मुमकिन है कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड है तो उसमें खराबी आ सकती है, तो उस सूरत में कंपनी यकीनी तौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है क्योंकि उन्होंने मनी आपसे चार्ज की होती है। इफ थिंग डजंट वर्क दे विल fix it or compensate your loss. Number 2, a statement of inconvenience caused or the loss suffered as a result of the mistake or defect. और आपको बताना है कि inconvenience क्या हुई, आपको loss क्या हुआ। For example, आप कोई जूसर लेके आए घर और वो जूसर में सब कुछ है लेकिन उसका ढकना नहीं, तो आप कहेंगे कि मैं लस्सी बनाता हूँ तो मेरे मुंह में गिरी है तो इससे मुझे ये नुकसान हुआ, तो आप इसको फिक्स करें और मुझे मेरा लॉस जो है कॉम्पनसेट करें। या तो आर्टिकल बदलें या मुझे इसमें जो डेफिशिएंट आर्टिकल है वो दें क्योंकि लॉस मुझे ये हुआ है कि मेरे मुंह पे जाके जूस या लस्सी गिर गई। नंबर 3, एन अपील टू द रीडर्स सेंस ऑफ फेयर प्ले. An appeal to the reader's sense of fair play, honesty, reputation, or professional pride with a view to motivating him to take necessary action. An appeal to the reader's sense of fair play यानी आप जिसको क्लेम लॉन्च कर रहे हैं उसको अपील आपने करनी है कि ये फेयर मेरे साथ फेयर हो जाओ क्योंकि मैंने आपको पेमेंट की है और पेमेंट के रिटर्न के तौर पे मुझे जो आर्टिकल मिला है या जो कमोडिटी आपने मुझे दी है उसमें उसूल ये बनता है कि उसमें हर चीज वैसी हो जैसी लेबल पे मेंशन थी और जैसी आपने डिस्प्ले की हुई थी, जैसी आपने बेचते हुए मेरे से प्रॉमिस की थी। तो फेयर प्ले तो यही कि उसमें वो सारी चीजें होनी चाहिए। वैक्यूम क्लीनर लिया आपने और अगर आपका उसके अंदर फिल्टर बैग्स एक्स्ट्रा फिल्टर बैग नहीं है लेकिन उसके ऊपर लिखे हुए को है तो उसका मतलब ये फेयर प्ले नहीं हुआ, आपके साथ धोखा हुआ है, आपको वो चीज नहीं मिली, तो यू नीड टू हैव इट, आपको मिलना चाहिए इस तरह। तो उसका फेयर प्ले की जो सेंस है ना वो आपने अराउज करवानी। ऑनेस्टी, रेपुटेशन और प्रोफेशनल प्राइड विद अ व्यू टू मोटिवेटिंग हिम टू टेक नेसेसरी एक्शन, ताकि वो नेसेसरी एक्शन लेने के लिए तैयार हो फौरन to rectify the situation. Number 4, a statement of what adjustment you would consider fair, और आप ये भी बताएं कि मुझे कौन सी चीज है जो एक प्रॉपर एडजस्टमेंट लगेगी। या तो जिस तरह मैंने शुरू में एग्जांपल दी जूसर की कि या तो मुझे आर्टिकल रिप्लेस करके दें
या मुझे मनी वापस करें, 2, या तीसरा जो कि मैं मोस्ट अप्रोप्रिएट समझता हूँ वो ये कि जो मिसिंग पार्ट उस आर्टिकल का है यानी ढक्कन, वो मुझे प्रोवाइड कर दिया जाए ताकि जो चीज मैंने ट्रस्ट में आके खरीदी है उसकी सारी चीजें मेरे पास पूरी हो जाए। तो आप समझते हैं कि मुझे ढक्कन मिल जाए तो मैं कंटेंट हो जाऊंगा, तो यू मस्ट मेंशन इट। जिस तरह मैंने मेट्रो में लिखा कि भाई मेरे पास 6 कॉफियां मैंने लेनी थी, बाकी 18 कॉफियों का बिल आपने एक्स्ट्रा बनाया, तो मैं आपको सारा सौदा वापस नहीं कर रहा। मेरे लिए बेस्ट तरीका ये होगा कि जो एक्स्ट्रा मनी आपने चार्ज की है वो काइंडली मुझे रिटर्न कर दें एंड आई विल बी कंटेंट। एंड दे डिड एग्जैक्टली दैट, बिल्कुल वही किया, क्योंकि मेरी नजर में भी वही फेयर एडजस्टमेंट थी और उनको भी यही पता था कि दैट इज व्हाट शुड बी डन। अगर मैं उनसे डिमांड करता कि आपने मेरे से 6 कॉफियां का बिल दे दिया, ले लिया, 18 का और ले लिया, अब मुझे 36 और कॉफियां दें, तो वो मुझे कहेंगे भाई मुंह परे कर, गुड बाय। ये कोई प्रॉपर एडजस्टमेंट नहीं है। एडजस्टमेंट वही है which should be equal to, which should satisfy both the customer and the seller. To secure a prompt and satisfactory response, a claim letter is usually written to the head of the unit. To secure a prompt and satisfactory response, a claim letter is usually written to the head of the unit. जी हाँ, head of the unit. मैंने किसको लिखा? ब्रांच मैनेजर के नाम वो मैंने फोन किया था। I called मेट्रो कस्टमर केयर, उन्होंने फिर मुझे हेड ऑफ ऑफिस से मेट्रो न्याज़बेग की तरफ रुजू करवाया। There, the branch manager received my call and he accepted my grievances and promised to fix the problem. तो आपने हेड को अप्रोच करना है और वही चूंकि सारी चीजों को ओवरलुक कर रहे होते हैं, तो ओवर हेड कर रहे होते हैं, तो दे एक्चुअली सॉल्व द प्रॉब्लम। Responsible for the mistake. 3 examples of claim letters are given below, and there are 3 examples down there. For example, 1, dear sir, we had ordered 1 kilogram tins of Nihal baby food powder under our order number from 4 October 2014. Today, when the consignment arrived, we checked its contents and found only 1,500 tins. 500 tins missing थे इसके अंदर, out of which 45 were badly damaged, और उसमें से भी 45 damaged थे. It seemed one of the cases was not packed properly or some heavy load had been placed over it in transit. So 10 minutes are left in this class. There is a great damage for this powder in the town. There is a great demand for this powder in the town at this time of the year, and we expected to clear the whole stock during the next 2 months, but it appears some of our customers will have to be disappointed. With enormous resources at your command, we hope you can save the situation by sending 500 tins immediately by quick transit service. As regards the damaged tins, we want your advice. There are 2 alternatives. Either ये alternative भी provide किया कि हम उसकी proper adjustment क्या समझेंगे. Either you allow us to sell them at reduced price, in which case we shall send you the total amount realized after deducting our usual commission of 7%, or permit us to return them to you at your cost of replacement. We would very much appreciate an early reply. Yours faithfully, R.L. Bekchi, परचेज मैनेजर। ये उसने लिखा हुआ है परचेज मैनेजर ने कि भी हम ये इसको समझेंगे। जिसने परचेज की है, ऑर्डर देने के बाद जो परचेज आ रही है उसके पास, उसने फिर ये रिक्वेस्ट किया कि हमें 2000 चाहिए थे, 1500 पहुंचे, उनमें से 45 जो खराब हैं, 500 जो है वो मिसिंग है, तो हमें सबसे पहले तो 500 हमें फौरन भेजे जाए, बाकी जो बचते हैं 45 उसमें ये कि या तो रिड्यूस प्राइस उनसे ले ली जाए या एक्सचेंज जो उसका आपने पॉलिसी रखी है वो हमारे साथ है। और इसके बाद एडजस्टमेंट लेटर, थैंक्स डियर सर, थैंक यू फॉर योर लेटर नंबर दिस एंड दैट, जनवरी 4 2014, forwarding bill number flan dated 4 November 2014. In it you have included 2 items which we did not buy. They are punching machines, और claim letter है कि पंचिंग मशीन भी आपने डाल दी 6 नंबर्स ₹54.60, गम बोतल बिग 1 dozen ₹88.80. It seems there has been some mistake in copying from our personal account maintained by you. Let me first see your attendance. कितने लोग हैं? 50. So there are 25 people who are not here. Right. So
It seems there has been some mistake in copying from our personal account maintained by you. Will you please get it checked and send us another bill? I'm returning them with your bill number this and that. According to our calculation, only rupees 409.44 are due from us. Yours faithfully. And there is another claim letter. Now, offering adjustments किस तरह दी जाए? मैं तीसरा claim letter नहीं पढ़ रहा हूँ. Adjustments किस तरह दी जाती है? Enlightened business organizations do not consider a claim letter as a nuisance. जैसा मैंने जिक्र किया कि अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो है क्लेम लेटर्स को डिस्कार्ड नहीं करती हैं, बल्कि उसको वैल्यू करती हैं, क्योंकि उनके लिए एक एक कस्टमर अपना जो है वो बड़ा वैल्यूड कस्टमर होता है. रिसेंट माई एग्जांपल, एक और अपनी जाती एग्जांपल, लास्ट वीक मैंने केक्स एंड बेक से 2 पिज्जा रिक्वेस्ट किए. एक उनका सुप्रीम पिज्जा एंड द अदर वन वाज फजीता पिज्जा. यस, सुप्रीम वाज गुड. फजीता के ऊपर उन्होंने बड़ा ही कड़वा तेल लगाया हुआ था, कड़वा तेल जो अचार में भी नहीं कोई डालता. उसका टेस्ट ही सारा भद्दा. और मेरे अच्छे गेस्ट आए हुए थे यहाँ पे जिनके लिए मैंने मंगवाया हुआ, तो ठीक ठाक embarrassing situation बनी कि एक तो हमने खा लिया, that was good, but the other one actually was sheer disappointment. उसके बाद फिर मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा ये क्लेम है मेरा कि भाई आपने मेरी मनी के इक्विवेलेंट चीज नहीं भेजी, तो आप काइंडली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, आप जिस तरह समझते हैं उस तरह सॉल्व करें. तो द नेक्स्ट डे they took the article back. उन्होंने वो हमारा खाया हुआ पिज्जा वापस लिया, and the very next day they called us and compensated us by sending us another pizza of a different taste or different flavor. उससे मेरा ट्रस्ट जो रिटेन रहा, मेरा उनके ऊपर ट्रस्ट रहा है कि भाई ये अपने कस्टमर्स को वैल्यू करते हैं और उनको लूज नहीं करते हैं. तो एनलाइटेंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट कंसिडर अ क्लेम लेटर एज ए न्यूसेंस. से मुराद ये कि वो अपने कस्टमर्स जाया नहीं होने देते. अगर वो एक एक करके अपने कस्टमर को जाया करेंगे, मैं अगर वो मुझे एंटरटेन करते तो हो सकता है मैं अगले अपने 10 लोगों को कहता कि केक्स एंड बेक से कभी पिज्जा ना लेना. वो बड़े खराब पिज्जा देते हैं और अपने कस्टमर्स को रिस्पेक्ट भी नहीं देते जब वो उनके साथ कंप्लेन. बट दे एंटरटेन माय रिक्वेस्ट एंड क्लेम by compensating me in the best proper way. So that's how good organizations do. On the other hand, they welcome it because it gives them an opportunity to re-examine their working and to bring about such changes as would make it more efficient. और इस फीडबैक से उनको ये भी पता चलता है कि उनकी क्या प्रोडक्ट में खराबियां आ रही हैं, वो उनको फिक्स करते हैं. This way, their trust in the market remains intact, and they continuously improve themselves, and they continue to retain their good name in the market. They know that all silent customers are not necessarily satisfied customers. Some of them do not write, but just stop having any business transactions with organizations whose products or services they find defective or unsatisfactory. उनको पता होता है कि सारे कस्टमर्स जो है satisfied customers नहीं है. वो उनकी चीजें खरीद तो रहे हैं लेकिन उससे बहुत खुश नहीं है. हो सकता है कि कोई मक्खन का ब्रांड को ले रहे हो लोग, लेकिन उन्हें पता हो कि और मक्खन जो है वो भी ऐसे ही है, तो चलो वो ही लेते हैं. मिल्क पैक का अगर दूध दही मिल रहा है तो वो ही लेते हैं. अनहार या प्रीमा का लेने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो लेट्स गो ऑन विद मिल्क पैक. तो इस सूरत में कंपनी को ये खौफ हमेशा रहता है कि हमारा कस्टमर कभी भी हमें छोड़ सकता है. तो दे ऑलवेज कीप अ हैंड और फिंगर ऑन द पल्स ऑफ देयर कस्टमर्स बाय आस्किंग देयर फीडबैक एंड आल्सो बाय कॉम्पेंसेटिंग देम एंड आल्सो बाय ऑफरिंग देम some deals as well, just to retain their trust. Instead, they start talking about their complaints to other customers, thus damaging the reputation of erring organization. Instead, they start talking about their complaints to other customers, thus damaging the reputation of the erring organization. इस तरह अक्सर customers जो हैं वो दूसरे customers से बात करते हैं और customers अक्सर छोड़ के किसी नई कंपनी को बाय कर उससे चीजें लेना शुरू कर देते हैं. Similarly, those who write claim letters but do not receive a reply damage the goodwill of the concern by airing their grievances in public.
That is why a claim letter, howsoever big or small the claim, must be answered promptly. इसलिए हर claim letter का जवाब फौरन देना चाहिए और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप कस्टमर को कंटेंट कर रहे हैं. It is however not possible to accept every claim. Each is examined on its merit. कुछ claims जो हैं वो जालसाजी पे भी मबनी हो सकते हैं, जिसमें लोग कोशिश कर रहे हो कि ऑर्गेनाइजेशन को फ्रॉड के जरिए उससे कुछ ना कुछ हत्याया जा सके. लेकिन कुछ जो है लेजिटिमेट होते हैं जिसपे ऑर्गेनाइजेशंस को पूरी कोशिश करनी चाहिए अपने कस्टमर्स को ट्रस्ट में. An attempt is made in every case to prove by action what every business organization claims, namely competent satisfaction, complete satisfaction of the customer. When the claim is rejected, a convincing reply showing why it was not possible to accept it is sent. और अगर वो accept नहीं कर रहे हैं तो उसका पूरा rationale देना चाहिए कि why it is not accepted. When the claim is accepted, a brief explanation of why the error occurred is also included in the offer of adjustment. In either case, the adjustment letter should have a pleasant impact upon the customer. जिस तरह मैंने बताया कि मेरे 2 प्रॉब्लम हुए और दोनों केसेस में मेरा ट्रस्ट जो है वो ब्रेक नहीं हुआ, ना ही मेट्रो पे और ना ही पे. I will still continue to buy from them because they valued my requests and status as their valued customer. Since the twin objectives of satisfying a customer and safeguarding the reputation of the writer have to be achieved, since the twin objectives of satisfying a customer and safeguarding the reputation of the writer have to be achieved, great care is needed in drafting an adjustment letter. आपको दोनों चीजें, एक तो कस्टमर को सेटिस्फाई करना और दूसरा रेपुटेशन ऑफ द राइटर, यानी आप जो एडजस्टमेंट लेटर लिख रहे हैं वो, और दूसरा राइटर की जो रेपुटेशन उसको भी आपने रिटेन करना है. A great care is needed in drafting an adjustment letter. Every customer wants what he ordered, nothing more, nothing less. A few practical hints which should prove of help to you in drafting such letters are given below. And what are those? 1 minute left. This call will drop at any time. Meanwhile, read on your own. Practical hints. 1. Answer the claim letter promptly. 1. 2. Address your reader personally to the particular customer. 3. Thank the customer for calling your attention to the difficulty, defect, damage, or mistake. Thank भी करना है उसका. Number 4. If the claim is reasonable, offer the adjustment graciously. अगर reasonable है तो फौरन उसको compensate करें. 5. Indicate the preventive measures taken by you and assure the customer that he will not be put to any such inconvenience in future. 6. Offer further cooperation and assurance of satisfaction. 7. If the claim is unreasonable or unjust, state clearly why you are refusing or not partially accepting his claim.